Okay, welcome back. Oh, आते echo. चलो, let the echo settle first. So, welcome back, and today being the last day of this new upcoming year, I mean, I just given a message that if you want, you can probably share with me the most important. I won't say important, most interesting, or maybe. Oh, I've got so many messages already. Most interesting moment, or maybe whatever you feel like probably sharing, or whatever happened in this year. I mean, of course, this being a corona year would not be a very memorable one, but I can tell you one thing is that I will go back to that same. याद है ना, मैंने बताया था ना ब्राजील का एग्जांपल कि ड्राइड आउट के बाद उन्होंने उल्टा एडवर्टाइजमेंट कर दिया. तो इफ यू आर थिंकिंग दैट ये ईयर बहुत बेकार गया, तो I can assure you that 10 years down the line you will remember only this year and so many things associated in this year, with this year, and the remaining years you will hardly remember. हाँ, पता नहीं उस साल भी ऐसे कुछ हुआ था, ऐसे देखना याद रहेगा. लेकिन इस साल की इवेंट्स देखना 10 साल बाद भी, 20 साल बाद भी, 30 साल बाद भी देखना काफी हद तक याद रहेगा. मतलब you will have more memories of this year than probably the next 10 years, and that is something that you will feel maybe after 15 years probably. And I hope that I am proved correct on that front. Okay, chalo khair. Anyway, we will begin with the academic part quickly because I think we will have some reserved time in the end of the class for reading out some of the interesting ones. क्योंकि अभी भी मैं देख रहा हूँ कुछ आ रहे हैं भी messages regarding some of your interesting or successful or joyous moments maybe of this year. I will read out some of them, whatever time would spare us. Rishabh has already mentioned about Happy New Year. Same to you in advance, in fact. Harshit, good morning. Parth, Garv. Garv has gone back to his Desi style. Pranam, sir. Bhavya, good morning. Ansh, Som, Aryan, Vansha, good morning to all of you. Now there is more addition to the list, Om Pathak. So I'm sure you must be having a very thrilling feeling. एक दो हफ्ते पहले I was like keeping my fingers crossed कि पता नहीं winter vacations होंगे या नहीं होंगे. But I'm sure yesterday's message or rather small PDF file in the evening, towards the evening, must have cleared all those doubts and must have made you a little bit more thrilled as far as today is concerned. चलो, let's start with the proceedings of the day. कल मैं thermometry की बात कर रहा था. Actually, thermometry is a subject which is more historical than physics. इसके बहुत interesting history है. But then, as I said, scientific history is never really a part of our curricula. But I always emphasize the history of science is no less interesting. I will repeat, the history of science is no less interesting than science itself. It's only when you read, you will come to know and probably believe what I'm saying. Otherwise, you might say कि ना कहाँ history बस छोड़ दिया अच्छा किया लगता होगा, but ऐसे भी नहीं है. ठीक है? Om Pathak, good morning. Let's go to the science of the thermometry thing. Suppose I say that I have introduced a new skill. Let's call it as N. And this is the data in degrees Celsius. So it is given that when it is 23 degrees Celsius, okay, in the new scale, suppose it is 67. Okay, and when it is 54 degrees Celsius. Okay, let me make my own calculations a little bit. This is suppose 222. Yeah. Okay. So it is given like this that when it is 23 degrees Celsius, this is 67. When it is 54, this is 222. It is given. So to find out what will be the temperature, let's say,
when this is suppose 100 degrees Celsius, when it is 0 degrees Celsius, or for that matter, any temperature. For example, let's say 63 degrees Celsius, 64 degrees Celsius. Okay, 65 degrees Celsius. So just fill up the values in this chart. Okay, just fill up the values in this chart quickly. In the meanwhile, maybe I can also have a look at what all messages have come till now. This thing, I mean, I'm not telling the names, I mean, just in case somebody might not want that, I mean. So let it be, let the names not be there. I'm just reading out the sense of achievement or success or some interesting point or whatever. As I said, I won't read out the names. The first thing that I'm reading out is that the most successful moment was class 10th result. And couldn't believe that so many people knew me. So that was interesting. So after class 10th result, even unknown people start congratulating you. So you start feeling very good about it. So that was the first comment. Well, Ansh has given a political twist to my question. And that is, what was the most interesting moment? I'm reading out the name of Ansh because his answer is not a personal one. And that's the only reason. And that is Donald Trump losing the election and vaccine being finally launched. So his is more of a social answer than a personal answer. That's why I took the name of Ansh. Otherwise, I would not have taken the name. Okay. Again, I will not take the name. But the most successful or the most interesting point was getting top 3 ranks in physics CPT or any test. So physics CPT mein top 3 is some kind of an achievement. I never knew that. But anyway, achievements are always personal in nature. Nothing to comment, but just saying that it's interesting. And also understanding rotational motion in just one attempt. Oh, that's an achievement. Rotation तो सबसे बड़ा और सबसे टफ माना जाता है. एक ही चांस में सीखना is not. Okay. Now this is a little I don't know. And that is when you cleared all my doubts, those were the happy moments. So ऐसे नहीं होता, doubts तो बेटे वैसे भी clear किया जाता है. I don't think these were happy moments. These are responsible moments. ठीक है? Well, I won't read out the name again, but not successful. But I might be one of the rarest people who have suffered an almost fracture case while staying at home. But ऐसे नहीं है. घर में fracture बहुत लोगों के हो जाता है. I mean, I can recall at least 3 teachers in MDPS itself. 3 of our colleagues in MDPS itself who had fractures within this 1 year period. So ऐसे नहीं है. It is something which is very rare. I mean, ठीक है? One more and then we will go back to our academics, and that is the most interesting moment for me this year would be the day I got interested in motor sports. It opened my mind about endless and interesting possibilities in engineering. And also the day NTSC stage 1 result was declared. It was in February, but part of last session. So I don't know if that counts. Surely it would count. I mean, year is year. I mean, like right from January to December. So February will definitely count. And if there is some other thing that you want to narrate or recall or share, I mean, most welcome. So maybe towards the end of the class, we will have another small 5-minute interjection to get to those. So let's start here. Actually, देखो, ये question अगर traditional method से करोगे, तो it will be a very long one. It will actually a very long one. इसलिए इसका method समझो जरा. और सबसे बड़ी बात बताऊं क्या? कि इसमें कोई writing का जरूरत नहीं है. It is actually in the mind. Now, before I start the question, let me make a one-liner statement. ये statement actually इस पूरे question का crux है. थोड़ा सा इसको समझो. Temperatures across 2 different scales. I mean, across 2 different scales, temperatures are not in ratio, or mostly are not in ratio, except for Reaumur scale and Celsius scale. Temperatures will not be in ratio. I will repeat. Except for Reaumur and Celsius scale, temperatures will not be in ratio, but temperature differences will be in ratio. That means, let's say in a particular scale,
That means, let's say in a particular scale there is a 2-degree rise, and let's say in the other scale it is 5-degree rise. Then for every 2-degree rise, there will be a 5-degree rise in the other scale. So that's the way it happens. That means the changes in temperature is in a fixed ratio. Now look here. What is the change? The change is plus 31. See, this is not something that you need to write. You can do it in the mind also. What is the change here? The change here is 155. Isn't it 5 times? That means for every degree rise of temperature in Celsius scale, the rise in the new scale n will be 5. You might call it 5-degree n or whatever. I don't know whether there's degree in that new scale or not. जैसे Kelvin में नहीं होता है ना. So therefore let's call it just n scale. अब देखो 54 से suppose तुमको करना है 100. 54 से 100 का मतलब क्या हुआ? Rise by 46. तो इधर अगर 46 का rise होता तो इधर क्या होगा? 46 into 5. 46 into 5. Now how much is that? 230. So just add 230 to this. So 230 plus 222, and that is 452. So I think 452. ठीक है. आर्यन, सोम, अर्नव, तुमने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया लग रहा है कि तुम्हारा 457 आया हुआ है. ठीक है ना? चलो, एनीवे, आई होप यू गॉट द आंसर नाउ. अच्छा, अब आ जाओ 0 डिग्री सेल्सियस. अब जरा एक चीज सोचो, 100 का तो पहुंच गए हम लोग, तो 100 से 100 पीछे करोगे तो क्या हो जाएगा? ना 0 पे पहुंच जाएंगे. तो यानी इसमें भी 500 नीचे कर लो. तो यानी यहाँ पे भी क्या करोगे ना, यहाँ से 500 नीचे कर लो. तो 452 में से अगर 500 माइनस करो, what will you get? Minus 48. See, you don't even need to write anything. Just the mind works and you will quickly get the answer. 65. तो 65 के लिए काम करो, 54 से 11 का राइज करा दो. 54 से 11 का राइज करा दो, 65 होगा. तो वहां पे क्या करेंगे ना, 11 into 5 यानी 55 का राइज करा दो. यानी यहाँ पे 55 ऐड कर दो. तो 222 plus 55, and that is 277. See, the crux of the matter is that temperatures may not be in ratio, but the temperature changes across two scales will be always in a fixed ratio, and that is the crux of the matter. इसका actual traditional method अगर देखोगे तो बहुत लंबा है. क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड क्या होगा ना, लेट अस से इस n स्केल का अपर लिमिट और लोअर लिमिट सपोज u और l है. तो पता है क्या करना पड़ेगा? पहला इक्वेशन 23 is equal to 67 minus l by u minus l. ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. फिर इक्वेशन नंबर 2, 54 is equal to 222 minus l by u minus l. ये हो गया इक्वेशन 2. अब इन दोनों को सॉल्व करके पहले u और l का वैल्यू निकालो. That would be the traditional method. यानी सॉल्व करके u और l का वैल्यू निकालो. फिर थर्ड इक्वेशन में पुट करो, 100 is equal to whatever, ये ब्लैंक है, यानी 100 is equal to n minus l by u minus l. इतने देर में u और l निकल चुका होगा. अब जरा बताओ ये सब कैलकुलेशन कितने होंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन बहुत लंबे होंगे. So this will definitely not be the right approach. Obviously not. ठीक है ना? So that's all. चलो, so that would give us an idea about what would be the temperatures across different scales. Historically, scientists बहुत struggle किए हैं different kinds of thermometers निकालने में. In fact, जो आज के दिन में यूज किया जाता है, कुछ तो डिजिटल हो गया, वो तो चलो अलग ही हो गया. आज के दिन में अगर वो मर्करी थर्मोमीटर देखते हो तो that itself has a very fascinating history as well as a lot of science in that. But anyway, आज का टॉपिक तो वो है नहीं, इसलिए let's move on. Let's move on to the next topic, and that is calorimetry. Calorimetry is based on heating and cooling of substances. In this particular chapter, we are going to restrict ourselves to only solids and liquids. Calorimetry exists even for gases also, but gases का थोड़ा और complicated है, ठीक है ना? Therefore, we will take it in thermodynamics and not right now. तो अभी calorimetry में हम लोग क्या करने वाले हैं? We are going to study only about solids and liquids. ठीक है? Solids and liquids. Let me see if there are some more coming up. Okay, some more have come up in the meanwhile. Oh, it's only 2 more. Chalo. I will again remind those who are keen to share some of your achievements or some high points of this year, can please do quickly so that maybe towards the end of the class we will have another round of discussion. चलो, तो solids और liquids में दो चीजें होता है. एक होता है heating
सर कहाँ पे भेजने हैं? यहाँ पे चैट ऑप्शन में भेजने हैं? नहीं, वो 9555 वाले नंबर पे। अच्छा एक ठीक है, मिनट, ये मेरे पास हमेशा साइड में रहता है, मैं देखता रहता हूँ क्या ठीक कर है, रहा ठीक है। ओके, तो हीटिंग और कूलिंग, ओके, इन सेम स्टेट but with temperature change. So that's the first heating or cooling. इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है डेल्टा Q is equal to mc डेल्टा थीटा. Now when I see delta theta, अगर हीटिंग का इक्वेशन चाहिए तो in that case delta Q will be mc theta 2 minus theta 1. और अगर कूलिंग का अमाउंट जानना चाहते हो तो in that case delta Q will be equal to mc theta 1 minus theta 2. Now that is what is heating and cooling. But in general जो amount of heat या cool होता है वो होता है mc delta theta. So this is about amount of heat. M is the mass. So M is the mass obviously. This is temperature change. So this is temperature change. Temperature change. C is the material property. C is the material property called specific heat capacity. ठीक है, specific heat capacity, that is C for you. इसके अलावा क्या है ना, इसके अलावा है हीटिंग या कूलिंग. सो लाइक हीटिंग या कूलिंग इन या एट सेम टेम्परेचर. ठीक है, ओके, विथ चेंज इन स्टेट. इसका जो डेल्टा क्यू है दैट इज इक्वल टू m इंटू एल, वेयर m तो ऑब्वियसली मास है, आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है. L इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट. लेकिन ये जो लेटेंट हीट है ना, इसके अलग अलग नाम है. ठीक है, नाम कैसे है? अच्छा, बाय द वे स्पेसिफिक कैपेसिटी इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी फॉर अ गिवन सब्सटेंस. इन फैक्ट one of the highest specific capacity material is water. Now there's a question, and that is, why does water have such a high specific heat capacity? The answer is of course your hydrogen bonding that exists in that water. You know about that already in chemistry. Special bonding in water. अच्छा, अब देखो, I would like you to remember some of the values, and that is C, that is specific capacity for water, is equal to 1 gram per degree Celsius. Okay, 1 gram, sorry, 1 calorie per gram per degree Celsius. Now that is what is specific capacity for water. You remember that. Now you might say ये तो कैलोरी में है और ये तो CGS में हो गया. देखो, अगर तुम MKS में करना चाहते हो तो in that case it will become 1000 calorie per kg per degree Celsius. So it's up to you. But generally question ना ग्राम्स में ही आते हैं, तो therefore let's stick to grams. फिर हो गया C of ice. ये दोनों वैल्यूज तुमको याद रखना है, that is 0.5 calorie per gram per degree Celsius. Now because 1 calorie is approximately 4.2 joule, so this is approximately 4.2 joule per gram per degree Celsius. So that is also another way of expressing it. ठीक है, चलो. Now that was about a specific capacity. ये जो दो वैल्यूज मैंने लिखा है ना, इन दोनों को याद कर लो, क्योंकि ये ना एग्जाम में दिया नहीं भी हो सकता है. बट इसके अलावा किसी भी और मटेरियल का, कॉपर हो, आयरन हो, स्टील हो, जिंक हो, चाहे कुछ भी, उसके मटेरियल के, उस मटेरियल के स्पेसिफिक कैपेसिटी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया होगा. पर वाटर का या आइस का कभी कभी नहीं भी दिया होता है, इसलिए इन दोनों को तुमको याद करना. वेरी इजी है, 1 और हाफ, तो लाइक नथिंग वेरी डिफिकल्ट. इसके बाद आ जाओ एल. नाउ एल कई सारे हैं, जैसे सॉलिड से जब लिक्विड होता है और लिक्विड से गैस होता है और फिर उल्टा भी होता है, तो इस प्रोसेस का नाम होता है लिक्विफिकेशन, है ना. जैसे सॉलिड, इसको हम लोग कई बार बोलते हैं फ्यूजन और मेल्टिंग. लिक्विड से सॉलिड को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन. मैंने एक टर्म गलत यूज कर लिया था, लिक्विफिकेशन यहाँ पे होता है. लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड एज बॉइलिंग या कभी कभी इवेपोरेशन भी बोला जाता है.
और गैस टू लिक्विड का होता है कंडेंसेशन, ठीक है, एंड लिक्विफिकेशन, ठीक है ना। सो दीज आर द टर्मिनोलॉजीज यूज्ड है। और इसमें वाटर का याद रखना, वाटर, आइस, स्टीम, इसमें वैल्यू याद रखना, ठीक है। ये हो गया 80 कैलोरी पर ग्राम और ये होता है 540 कैलोरी पर ग्राम। ये दोनों वैल्यूज तुमको याद रखना, ठीक है, 80 और 540 बस। अच्छा, ये दोनों वैल्यूज हमेशा इक्वल होगा, ध्यान रखना। मतलब ऑब्वियसली कि अगर वाटर को आइस बनाना है तो 80 कैलोरी प्रोवाइड करना पड़ेगा, और अगर आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है तो 80 कैलोरी विथड्रॉ करना पड़ेगा। Similarly, ice to steam, you have to provide 540 calorie per gram, and if it is from steam to ice, then you have to withdraw your extract 540 calorie per gram. Now that's the calculation. अब हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। Questions are based on what is called as principle of calorimetry. Principle of calorimetry. Principle of calorimetry says heat lost is equal to heat gain. कुछ ज्यादा हाईफाई लगा के है या नहीं? Isn't it so obvious? अब देखो, पता है प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि साइंस में कोई भी चीज ऑब्वियस नहीं लिया जाता। साइंस में हर चीज के पीछे एक थ्योरी हो जाता है। तो नाउ वी आर कॉलिंग इट एज प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। यू माइट से इट्स ऑब्वियस कि जितना हीट एक सब्सटेंस ने अगर हीट गेन किया तो किसी और से गेन किया होगा, तो उसने हीट लूज किया होगा। ये तो यू नो बट ऑब्वियस है। बट चलो जो भी है, बट ऑब्वियस हो या नहीं, है ना, तो हम लोग इस तरीके से लिखते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। Now these are the values which you have to remember. So I hope you have noted them down, or at least mentally noted them down, even if not copied. Now let's quickly go to questions. First question is a relatively simple one, and that is, let's say in a bucket we mix two water samples. One is 80 gram at 30 degrees Celsius, and the other is suppose 20 gram of 72 degrees Celsius. 82 degrees Celsius, 70 कर लो, चलो छोड़ो, 70 degrees Celsius. These are mixed here. Okay, find the final temperature and composition. Now this is the common question in calorimetry. सर क्या मैं पूरी वापस बताना? कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, एक 80 ग्राम पानी डाल दिया जो कि 30 डिग्री वाला था, तो थोड़ा ठंडा था, और थोड़ा गर्म करके डाला 20 ग्राम पानी 70 डिग्री सेल्सियस, एक बकेट में मिक्स कर लिया। एंड लेट्स से वी आर मिक्सिंग इट इन अ मैनर दैट देयर इज नो हीट लॉस हैपनिंग, यानी जैसे बकेट में डाला तो तुरंत बकेट को बंद कर दो कि हीट बाहर ना जाए, और बकेट अच्छे से ले लो, प्लास्टिक के मोटे से बकेट ले लो, सो दैट उसमें से हीट जो है निकल के ना चला जाए। सो दोस आर प्रिजम्पशंस। ओह, दिस Aryanth has asked a question. हाँ, ये दोनों वाटर है। That is what is written in dotted lines. अब तो मैंने मिटा दिया। I don't know what was written in that. ठीक है ना? But I hope you have copied and understood also. आदित्य says कि ice should be in place of water. मैंने हड़बड़ी में गलत लिखा था क्या? ये ice होगा, ये water होगा, और ये होगा steam. मैंने शायद गलत लिखा है ना? ये वाला शायद गलत लिखा था, मुझे भी लग रहा है। तो ये 80 कैलोरी वाला, ये 540 वाला। तो इनकेस अगर मैंने वाटर लिख दिया था तो उसको ठीक कर लो, ये आइस होगा, ठीक है। Maybe I had written wrong, I mean. Okay, Anusha has already given an answer, and that is 38 degrees Celsius for this particular question. Chalo, let's quickly see. This is a very easy question, but इस क्वेश्चन के थ्रू ना हम एक प्रोसेस ले डाउन करेंगे। पता हम लोग क्या करेंगे, इन जनरल इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन के अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग चीजें होंगी, कोई वाटर होगा, कोई आइस होगा, कोई और कुछ चीजें होगा, और फिर एक दूसरे की तरफ देखना, दोनों ट्रैवल करेंगे। जो ठंडे वाले चीजें हैं वो गर्म हो जाएंगे, और जो गर्म वाले चीजें हैं वो हीट लूज करके ठंडे हो जाएंगे। तो दे विल एक्चुअली मूव इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, दे विल एक्चुअली मूव टुवर्ड्स ईच अदर, and then finally they will settle at a common temperature. All calorimetry questions will be like this, that they will finally settle at a common temperature. ठीक है?
So I don't know what the temperature is, but I know that two starting points, they are 30 degrees Celsius and 70. So this will settle to some temperature. This will also settle to some temperature. Let's say call that temperature as theta. Theta will be called as the equilibrium temperature, यानी final temperature. अब देखो heat gain. तो heat gain कितना हो गया? ये सब मैं लिख रहा हूँ थोड़ा सा क्योंकि पहला क्वेश्चन है, but I think बाद में लिखने की जरूरत नहीं है. Heat gain कौन कर रही है? तो heat gain होगा mass 80 into specific capacity into final minus initial temperature, theta minus 30. And heat lost कौन कर रहा है? कर रहा है. तो mass तो 20 है. Mass specific capacity into initial minus final. तो initial minus final का मतलब हो गया 70 minus theta. I think heat lost is equal to heat gain. यानी 80 into theta minus 30 will be equal to 20 into 70 minus theta. ठीक है? तो 20 का वो करके 4 हो गया. तो यानी 4 theta minus 120 is equal to 70 minus theta. ठीक है? तो ये आ जाएगा 5 theta is equal to 190 and therefore theta is equal to ठीक है 38 degrees Celsius. Now this is too easy a question. I knew that. इसलिए 38 कई सारे आंसर आ गए. केतव, देहम, अरियंत, but first answer was given by of course Anusha. उसके बाद भव्य ने भी दिए हैं. सोम, केतव, देहम, everybody is given the right answer and correct answer. अब देहम ने भी दिया. अच्छा देखो इस क्वेश्चन का मैं चेंज कर रहा हूँ. Because this is too easy question. Obviously this will never come. कैलोरीमेट्री में अगर क्वेश्चन आया तो दो टाइप का आ सकता है. मैं एक बता देता हूँ अभी. And that is suppose I have ice 240 gram and at minus 120 degrees Celsius. There is water which is 30 gram and at 40 degrees Celsius. ठीक है? We have mixed the two. We have suppose mixed the two. What will be the final temperature and composition? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में composition was not so important. वैसे तो क्वेश्चन में composition भी था. Composition इसलिए नहीं क्योंकि सारा कुछ वाटर ही है. तो जो 80 ग्राम था वो भी वाटर है, तो 20 ग्राम वो भी वाटर है. यानी फाइनल टेम्परेचर तो 30 डिग्री सेल्सियस हो गया एंड 100 ग्राम वाटर. दैट वाज द फाइनल कंपोजिशन. सो द फाइनल कंपोजिशन वाज 100 ग्राम वाटर. सिंपल. अब हम इसको मिक्स कर रहे हैं. माइनस 120 डिग्री सेल्सियस आइस 240 ग्राम and 40 degrees Celsius 30 gram. No need to say that is water. So question is the same. Final temperature and composition. Now these type of questions have a particular way of thinking and that has to be standardized. And that's what we're going to do in this case. और देखना ये सारे क्वेश्चन उसी फ्लो में ही होता है. बट एक इश्यू पता है क्या आता है कि तुम एक अटेम्प्ट में फाइनल इक्वेशन नहीं लिख पाओगे. एक अटेम्प्ट में फाइनल इक्वेशन नहीं लिख पाओगे क्योंकि अभी पता नहीं है कि आइस मेल्ट होके वाटर बनने वाला है या वाटर फ्रीज होके आइस बनने वाला है. अभी ये नहीं पता. थोड़ा बहुत देख के तो आइडिया लग रहा होगा बट देन यू कैन नेवर बी कंफर्म्ड. सो देयरफॉर वी हैव टू डू सम बेसिक इनिशियल कैलकुलेशंस एंड आफ्टर दैट डिसाइड ऑन द कोर्स ऑफ एक्शन कि इधर से इधर जाना है या उधर से इधर जाना है. क्योंकि हमारे पास एक 0 डिग्री का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट माइलस्टोन. ठीक है ना. चलो गो अहेड. कुछ आंसर्स ऑलरेडी आने लगे हैं. मुझे लगता है कहीं वो हीट लॉस हीट गेन फटाफट तो मिला नहीं दिया ना. ऐसे नहीं होगा बेटे. यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है और वो है 0 डिग्री सेल्सियस. 0 डिग्री पे आके पूरा सिस्टम हॉल्ट कर जाता है क्योंकि वहां पे या तो फ्रीज होगा या तो मेल्ट होगा. तो वहां पे इसलिए सिस्टम हॉल्ट पे आता है. इसलिए सबसे पहले चेक करो कि इसको कितना चाहिए और इसको कितना चाहिए. देखो चाहिए डज नॉट मीन कि मिलेगा पर एटलीस्ट स्टार्ट तो करें. तो इसको कितना चाहिए मतलब कितना दे सकता है ये ना. m c1 into delta 3 is 40 यानी 1200 कैलोरी दे सकता है. इस क्वेश्चन को समझो. इसका मतलब ये हुआ कि 1200 कैलोरी जो है ये दे सकता है. देख लो. और ये ले कितना सकता है ना. ले कितना सकता है. द मास ये थोड़ा बड़ा है. मास इंटू स्पेसिफिक कैपेसिटी इंटू चेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होगा ना 120.
ये हो गया 120 into 120 यानी 14400. Now that's a huge amount. That's a huge amount. ये तो कुछ भी नहीं है. 30 ग्राम 40 तो 30 into 40 into 1 तो 1200 और ये हो गया 240 into specific capacity half और temperature difference 120. देख रहे हो? यानी 14400. So that means this case or this question clearly ice is dominating. यानी सबसे पहले वाटर यहाँ पे आ जाए. चलो भाई यहाँ अब देखना पड़ेगा कि वाटर को पूरा फ्रीज करने के लिए कितना चाहिए. क्या उतना हीट एक्सट्रैक्ट कर सकता है आइस, क्योंकि आइस एक्सट्रैक्ट कर रहा है हीट और पानी हीट दे रहा. सो बोथ आर हैपनिंग टुगेदर. तो चलो मैं एक प्रोविजनल कैलकुलेशन करता हूं, क्योंकि कई बार पता क्या होगा कि पता चला पूरा नहीं हो पा रहा. ऐसे भी हो सकता है, देखेंगे अभी प्रोविजन कैलकुलेशन ये करोगे. 30 ग्राम को अगर फ्रीज करना है तो कितना चाहिए. फ्रीज करने के लिए चाहिए 30 into 80 and that is 2400. यानी 1200 ऑलरेडी इसका हो चुका है रिलीज. एक और रिलीज करेगा 2400 का, वो तो हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये तो मिला के में 3600 ही हो रहा है, 3600 और ये तो 14400 है. यानी ये भी कंप्लीट हो जाएगा. यानी ये भी कंप्लीट हो गया. लो यानी अभी भी देखो इसके पास स्पेयर कैपेसिटी है. इसका मतलब क्या होगा, अभी और ठंडा होगा. यानी अब जाके फाइनली ये कुछ ऐसे कॉमन टेम्परेचर पे आएंगे. लेट्स कॉल दैट फाइनल कॉमन टेम्परेचर एज थीटा. और अब हम थीटा के उसके ऊपर लिखेंगे. ठीक है ना. फिर एक्सपीरियंस लिखेंगे थीटा के ऊपर. कैसे ना. हीट गेन इज दिस. तो हीट गेन्ड is equal to mass specific capacity into change of temperature, that is theta minus 120. You get heat gain. Heat lost कितना है ना. लॉस्ट वाला कितना 1200 लूज किया है, 2400 लूज किया है. तो 1200 प्लस 2400 प्लस मास 30 और अभी आइस बन चुका है. तो ये जो जर्नी है ना, अभी आइस बन चुका है, तो यानी 30 into हाफ हो जाएगा. इनटू लास्ट में क्या होता है, इनिशियल माइनस फाइनल, यानी 0 माइनस थीटा. ये इसके पूरे कैलकुलेशन है. देख लो बच्चे से. ठीक है. तो बाई 2 का तो 120 कर लो. तो यानी 120 थीटा प्लस 14400 इज इक्वल टू, ये हो गया 2400 और 1200 3600 प्लस 30/2 और माइनस थीटा, यानी माइनस 15 थीटा. देख लो अच्छे से. यानी अभी ये इधर आ जाएगा, यानी हो जाएगा 135 थीटा इज इक्वल टू माइनस 14400 प्लस 3600. यानी थीटा इज इक्वल टू, इसको माइनस कर लो, ये आ जाएगा माइनस 108 माइनस 108. ठीक है ना. और 00/135. Now that will be the final answer. So let me check. 0 माइनस थीटा क्यों है? थीटा माइनस 0 क्यों नहीं करा? देखो हीट लॉस्ट होता है इनिशियल माइनस फाइनल. हीट लॉस्ट होता है इनिशियल माइनस फाइनल. हीट गेन होता है फाइनल माइनस इनिशियल. तो ये हीट गेन हो रहा है, पर यहाँ पे कंटिन्यूसली लॉस हो रहा है, फिर लॉस हुआ, फिर यह भी लॉस ही हो रहा है. तो हीट लॉस्ट में क्या होता है, इनिशियल माइनस फाइनल. तो 0 माइनस थीटा. ठीक है. एक बार चेक कर लो. कुछ और पूछना तो बताओ. मैं जरा कैलकुलेशन डिसाइड कैसे किया कि फाइनल आइस बनेगा? हाँ बताता हूँ. नहीं आइस तो पूरा ही बन गया. ठीक है ना. यानी माइनस 80 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, इतना अच्छा से कैलकुलेशन कैसे हो गया. ये बिल्कुल कैलकुलेशन एकदम प्रिसाइज हो गया. अनएक्सपेक्टेड. अच्छा नहीं 15 और 3 15 और 9 27 तो होना चाहिए 134 एग्जैक्टली आ रहा है. माइनस 80 डिग्री सेल्सियस. और कॉम्पोजिशन क्या है, सारे आइस हो गया. यानी 240 ग्राम आइस था और 30 ग्राम वाटर था, वो भी आइस बन गया. यानी 270 ग्राम आइस. यानी फाइनल टेम्परेचर हो गया माइनस 80 डिग्री सेल्सियस
and 270 ग्राम आइस। एक बार जरा मेरा भी कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है ना? दैट्स द आंसर। ठीक है, देख लो अच्छे से। 270 ग्राम। सर हम थीटा कहीं भी ले सकते हैं? हाँ? थीटा कहीं भी ले सकते हैं, मतलब नेगेटिव भी आएगा बाद में तो दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं, थीटा इज द टेम्परेचर, और वो नेगेटिव आना है ये तो क्वेश्चन को खुद को पता होगा, इक्वेशन को पता होगा। देखो मुझे मालूम है, लेकिन अगर मैं उसको अगर माइनस थीटा लिखूंगा ना तो देयर विल बी कंफ्यूजन। इसलिए लेट दैट बी अननोन टेम्परेचर एक्स यानी थीटा, वो नेगेटिव खुद ही आएगा, उसका कोई टेंशन नहीं, वो अपने आप करेगा। देखो इक्वेशन एज, जब तक तुम इक्वेशन प्रॉपर तरीके से लिख रहे हो तो इट वोंट मैटर। देखना वो अपने आप ठीक कर लेता है अपने आप को, कुछ अलग से आर्टिफिशियल करने की जरूरत नहीं है। इसको माइनस थीटा मत लिया करो, थीटा ही लो, हो ज्यादा अच्छा। ठीक है, जस्ट लुक एट द इक्वेशन नाउ प्रॉपरली, आल्सो दीस स्टेप्स। यानी देखो ये क्वेश्चन में थोड़ा बहुत ट्रायल एंड एरर होता है, यू कांट हेल्प इट। अच्छा, लेट्स क्विकली मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन वेयर दिस विल गेट टेस्टेड। तो लाइक आई कैन रब इट अप। कोई और कुछ पूछोगे? चलो, so like now let me give another one. This time suppose the bias is not so strong on one side, so let us say there is 50 gram ice at minus 40 degrees Celsius, and let's say 30 gram water at 60 degrees Celsius. Okay, and let's see what is the final result. Let us see what is the final result. Okay, question is the same, and that is find final temperature and composition. So the question remains the same. अब थोड़ा जल्दी करो, अब तो थीम पता चल गया ना कैसे निकालना होता है। कई सारे आंसर्स आए थे इस क्वेश्चन का, अभी मैं पढ़ के नहीं सुना बिकॉज दे ऑल गॉन लिटिल अबव। अभी कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे बीच में, ठीक है ना? ध्रुव हैज आस्क्ड कि एक बार हीट लॉस वापस बता दो, तो हीट लॉस आ गया ना समझ में? आई होप इट्स ओके नाउ। मैं क्वेश्चन देख के आंसर कर रहा था, आई डिड नॉट रीड आउट बट आई वाज लुकिंग एट द आंसर्स। अर्नव हैज आस्क्ड कि क्या इसमें दोनों केसेस कैलकुलेट करके वेरीफाई करना होता है? तो एक्चुअली ना दोनों केसेस बनेंगे नहीं। जैसे तुम इधर से थोड़ा चलोगे और उधर से थोड़ा चलोगे तो तुमको आइडिया लग जाएगा कि मुझे इस तरफ जाना है फाइनली, या मुझे फाइनली इस तरफ जाना है, वो आइडिया लग जाता है। ठीक है, सो लाइक दोनों तरफ का कुछ नहीं, इट इज जस्ट दैट you to make an analysis of one step and that will give you a fairly good idea. इसमें भी देखना ऐसे हो। Now let me start with the provisional numbers. Well, let's get started. Provisional numbers देखो यहाँ का क्या होगा और यहाँ का क्या होगा, है ना? तो यहाँ पे हो जाएगा 50 into 40 into half. So that's like 2000 by half यानी 1000, यानी यहाँ पे तो आ गया 1000। ओके, इसका आ जाएगा 60 into 30, है ना? 60 into 30 into 1, so that's like 1800। यानी इस बार वाटर साइड डोमिनेटिंग, देखो ना वाटर साइड डोमिनेटिंग है। देखो इसका ज्यादा है, 1800 है, उसका 1000 है, यानी इस बार आइस मेल्ट होना शुरू होगा। चलो अच्छी बात है, तो जब पता चल गया कि आइस मेल्ट होना शुरू होगा तो ये तो यहाँ पहुंच जाएगा। अब आइस मेल्ट होना शुरू होगा तो आइस पूरा मेल्ट होगा या नहीं होगा मुझे कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए एक और कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो आइस को पूरा मेल्ट करने के लिए कितना चाहिए? m into L, m बोलते क्या? 50 into 80। Now what is 50 into 80? That's 4000, यानी 4000 कैलोरी चाहिए। क्या 4000 कैलोरी मिल सकता है? नहीं मिल पाएगा। क्यों? ये तो टोटल 1800 दे सकता है, जिसमें से 1000 तो ऑलरेडी दे चुका है, 1000 ऑलरेडी दे चुका है, तब तो ये 0 पे आया। यानी सिर्फ अब 800 और ये स्पेयर कर सकता है। थोड़ा कैलकुलेशन समझ लो अच्छे से। इसको 4000 चाहिए पूरा मेल्ट करने के लिए, पर उतना अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल अब कितना है? 800 है, 1800 भी नहीं है। क्यों? उस 1800 में से 1000 ऑलरेडी ये ले चुका है, तभी तो ये 0 पे है, दिस 0 डिग्री सेल्सियस। और उसको 4000 और चाहिए इस पूरे 50 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए, उतना है ही नहीं स्पेयर। स्पेयर कितना है? 800 है। 800 से कितना मेल्ट हो जाएगा? 800 by 80 यानी 10 ग्राम। इसका मतलब समझो, पता है क्या होगा? ये पार्शियली मेल्ट करेगा, यानी
एक चीज मुझे पता चल गया, and that is final temperature is equal to 0 degree Celsius and 10 gram ice has melted. ये 10 ग्राम का हिसाब कैसे हुआ ना, इसको 1000 चाहिए, ये मैक्सिमम 1800 दे सकते हैं यहाँ पे आने के लिए, तो ये तो यहाँ पे आ जाएगा 0 पे, और 1800 में से 1000 दे चुका है, 800 और स्पेयर है, वो 800 भी दे देगा, तो 800 के चक्कर में थोड़ा बहुत मेल्ट हो जाएगा, ज्यादा मेल्ट नहीं हो पा रहा है, पूरा मेल्ट नहीं हो पा रहा है, तो 10 ग्राम मेल्ट हो गया। अब इसका मतलब क्या हो गया, फाइनल कंपोजिशन फिर, है ना, फाइनल कंपोजिशन क्या हो जाएगा फिर ना, देखो ये 30 ग्राम ऑलरेडी है ना, और इसमें से 10 ग्राम मेल्ट हो चुका है, तो 40 हो गया, और वो 50 था, 10 ग्राम मेल्ट हो गया तो 40, यानी फाइनल कंपोजिशन हो गया 40 ग्राम आइस एंड 40 ग्राम वाटर, दैट इज द फाइनल कंपोजिशन। अब जरा एक बार देख लो अच्छे से, आई होप यू गेटिंग। लास्ट स्टेप एक बार दोबारा बता दो। देखो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट ये जो 1800 हमने कैलकुलेशन किया, अब कुछ आंसर्स आए हैं, आर्यन जैन यू आर राइट, उसके पहले आई थिंक और भी एक दो करेक्ट आंसर आए हैं, आर्यन इज गिवन, उसके पहले भव्य ने करेक्ट दिए हैं, सानिया भी दिए हैं, देहम आल्सो हैज गिवन द आंसर। चलो ठीक है, अब करेक्ट आंसर कई सारे आ गए। देखो आई एम रिपीटिंग द स्टेप्स अगेन, ये कैलकुलेट किया, 0 डिग्री लाने के लिए 1000 कैलोरी चाहिए, ये 0 डिग्री आता है तो ये 1800 कैलोरी दे सकता है, तो ये दोनों प्रोसेस स्टार्ट हो गए ऐसे ही साथ साथ, तो क्या होगा ये जो 1000 है ये यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, ये अपने 1800 में से 1000 दे देगा, तो ये दोनों आप 0 डिग्री पे आ। अब देखो 1800 में 800 तो एक्स्ट्रा था ना, 1000 तो इसने ले लिया, अभी 1800 देगा तो 1000 में से 800 अभी रह गया, वो 800 कैसे यूज होगा ना, वो जो 1000 लेके ये 0 डिग्री पे आइस आ चुका है, अब उस आइस में से ये जो एक्स्ट्रा 800 है वो मेल्ट करने लगेगा, 800 कैलोरी है, दैट विल स्टार्ट मेल्टिंग द आइस, तो 800 कैलोरी से कितना आइस मेल्ट होगा ना, वही फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ हीट अपॉन, क्योंकि m into l, तो l तो ये है, तो m into l इज इक्वल टू हीट, तो हीट इज 800, स्पेयर जो अमाउंट है, तो उस 800 के स्पेयर से 10 ग्राम आइस मेल्ट होके वाटर बन जाए, तो यानी आइस एंड वाटर बिकम्स व्हाट 40 एंड 40 ग्राम, और फाइनल टेम्परेचर तो 0 डिग्री से इधर उधर शिफ्ट होगा नहीं, जब तक पूरा आइस मेल्ट ना हो जाए, या अल्टरनेटिवली जब तक पूरा वाटर फ्रीज ना हो जाए, तो 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर अब हटेगा, वो 0 डिग्री पे ही रहेगा, ठीक है सर मान लो अगर हमने इनिशियल कैलकुलेशन नहीं करी और ऐसे कोई भी थीटा ले लिया, तो अगर वो लास्ट में नेगेटिव आ गया तो पूरी कैलकुलेशन गलत होगी, वो तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि देखो इक्वेशन हैज टू रिप्रेजेंट द प्रोसेस, यू कैन नॉट राइट एन इमेजिनरी इक्वेशन बेस्ड ऑन अ प्रिजम्पशन, जो प्रोसेस है उसी कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन होना पड़ेगा, तभी कैलोरीमेट्री क्वेश्चंस में पता क्या होता है, कभी भी पहले अटेम्प्ट में इक्वेशन नहीं लिख पाओगे, पहले अटेम्प्ट हमेशा चेकिंग का होगा, पहले चेक करो कि किस तरफ का डोमिनेंस है, किस तरह मूवमेंट हो रहा है, आइस से वाटर की तरफ मूवमेंट हो रहा है या वाटर से आइस की तरफ मूवमेंट हो रहा है, मतलब एट दैट 0 डिग्री पॉइंट है, जब तक वो डिसाइफर ना हो तो तुम सीधे इक्वेशन जो है अंदाजे से नहीं लिख सकते, जैसे इस केस में तो 0 डिग्री पे आके तो सिस्टम रुक गया, मेल्टिंग होता जा रहा है, टेम्परेचर तो नहीं चेंज हो रहा है ना, अब हम तो कैलोरीमेट्रिक इक्वेशन सीधे टेम्परेचर चेंज वाला लिख देते हैं, तो दैट विल नॉट बी एबल टू यू नो एग्जैक्टली रेप्लिकेट द प्रोसेस दैट इज हैपनिंग, इसलिए मैंने पहले बोला ना कि पहला स्टेप में इक्वेशन नहीं लिख पाओगे, पहला स्टेप हमेशा चेकिंग का होगा, उसके बाद अपना इक्वेशन लिखो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में इक्वेशन तो लिखा ही है, वो तो मैंने थोड़ा शॉर्टकट का क्या कर दिया कि 800 वाला स्पेयर लेके फटाफट कैलकुलेट कर दिया, दैट वाज सम काइंड ऑफ जंपिंग द स्टेप्स, आई मीन, बट एक्चुअली देखा जाए तो इतना प्लस ml इज इक्वल टू इतना, ये एक इक्वेशन बनेगा और उससे यही आएगा 10 ग्राम वाले आएगा, अब उस इक्वेशन को हम थोड़ा जंप करके सीधे ही निकाल लिए, those are things that you can do and you must have done, others also must have done, उतना तो कर लोगे जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा, है ना। चलो एक लास्ट कांसेप्ट बता देता हूं, that's where we will end the discussion, and that is what is called as simple concept, I mean water equivalent. Now what is water equivalent? now देखो सिंपल कंसेप्ट है, सपोज मेरे पास एक मटेरियल मान लो कुछ भी है, एल्यूमिनियम है, लेट अस से एल्यूमिनियम का स्पेसिफिक कैपेसिटी है 2.6 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अब इसका मतलब क्या है, वाटर का होता है 1 कैलोरी, अच्छा 2.6 तो ज्यादा दे दिया
एक्चुअली वाटर से ज्यादा तो नहीं हो सकता है ना, तो लेट्स से 0.6 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस. वाटर हैज वन ऑफ द हाईएस्ट स्पेसिफिक कैपेसिटी. वाटर से भी ऊपर किसी का है या नहीं मुझे नहीं मालूम है, बट माय नॉलेज इज कि वाटर का हाईएस्ट है. हो सकता है कि एक आध मटेरियल्स का, आई मीन रेयर मटेरियल्स होता है कई बार जिसमें वाटर से भी ज्यादा है, हो सकता है. तो लेट अस से एल्यूमिनियम का स्पेसिफिक कैपेसिटी है 0.6 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस. सपोज मेरे पास एक 240 ग्राम का एक एल्यूमिनियम सैंपल है. अब देखो 240 ग्राम को अगर तुम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे तो कितना हीट चाहिए? 240 इंटू स्पेसिफिक कैपेसिटी 0.6 इंटू 1. हो गया? ये तो आराम से कर सकते हो. तो ये कितना आएगा ना? 144 ग्राम, सॉरी 144 कैलोरी. तो 240 ग्राम एल्यूमिनियम को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हीट कितना चाहिए? 144 कैलोरी. पर जरा एक चीज सोचो, isn't 144 gram also going to need 144 calorie for temperature rise of 1 degree Celsius? थोड़ा सोच के देखो. I will repeat. 144 ग्राम का अगर मेरे पास वाटर है, अगर उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहोगे तो उसको भी तो 144 कैलोरी चाहिए. इसके मतलब क्या हुआ? इसके मतलब ये हुआ कि in terms of heat 240 gram aluminium is going to behave in the same way, equivalent as 144 gram water. इसी को बोलते हैं as water equivalent. Now I'm sure you must have guessed the formula for water equivalent. तो अगर formula for water equivalent जानना चाहते हो, M equivalent, that is water equivalent, is equal to M into C. That's it. Now you might say तो units inconsistent हो गया. Unit को मत देखो. Water equivalent will be just the numerical value of M into C. यूनिट मत देखो. तुम बोले ये तो मास है, ये तो मास इनटू स्पेसिफिक कैपेसिटी, और स्पेसिफिक कैपेसिटी तो यूनिटलेस होता नहीं, ये तो यूनिट वाइज मैच नहीं कर रहा है. आई अंडरस्टैंड. व्हाट आई एम ओनली सेइंग इज दैट मास इक्विवेलेंट या वाटर इक्विवेलेंट का मतलब होता है न्यूमेरिकली इक्वल टू M into C. 144 ग्राम्स, वही वाला चीज हो गया. नहीं बट इसका क्या यूज है? देखो यूज एज सच कुछ नहीं है. एक्चुअली पता क्या होता है ना कि कई बार क्वेश्चन में दे देते हैं. मैं बताता हूँ कैसे. जैसे एग्जांपल दे, सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक कैलोरीमीटर के अंदर कुछ पानी है, लेट अस से 20 ग्राम वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस. एक बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है, -60 डिग्री सेल्सियस, एंड लेट्स से 80 ग्राम आइस है, ये वाला. और एक कॉपर का टुकड़ा भी है, और लेट अस से इसका जो वो है वाटर इक्विवेलेंट है, दैट इज सपोज गिवन एज 5 ग्राम and at 300 degrees Celsius. Question is the same. What is the final temperature and composition? ठीक है. Question is final temperature and composition. ठीक है. अच्छा, यानी ये भी वाटर इक्विवेलेंट है, यानी ये भी 5 ग्राम पानी के बराबर है. यानी अब पता है क्या हो गया? अब हमारे पास 3 नोटेशंस हो जाएंगे. एक हो गया -60 डिग्री सेल्सियस, एक हो गया 20 डिग्री सेल्सियस, और एक हो गया 300 डिग्री सेल्सियस, और एक तो है ही 0 डिग्री, क्योंकि ये तो ट्रांजिशन वाला है ये. तो अगेन क्या करूंगा ना, इसको कैलकुलेट करूंगा, इसको कैलकुलेट करूंगा, इसको कैलकुलेट, सबको 0 पे लाने के लिए देखूंगा मैं. ठीक है. अब पता क्या होता है, कई बार क्वेश्चंस में एक शॉर्टकट क्या निकल आता है कि हम 20 ग्राम और 5 ग्राम को 25 ग्राम कर सकते हैं. बट नॉट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर्स अलग अलग थे. बट अगर मान लो बाई चांस इन दोनों का, पानी का और कॉपर का टेम्परेचर सेम होता, तो यानी कॉपर 5 ग्राम पानी के बराबर है, तो पानी के साथ ही जोड़ लो. ये एक पॉसिबिलिटी बनता है. लेकिन इस अप्रोच में एक कमी भी है, थोड़ा सा इसमें ध्यान भी रखना पड़ता है. क्या ध्यान रखना पड़ता है? ध्यान ये रखना पड़ता है कि ये जो 20 ग्राम वाटर है, इसमें तो वो ट्रांजिशन वाला भी आएगा फेज, पर इसमें तो ट्रांजिशन नहीं आएगा, है नहीं. सो दैट आल्सो हैज टू बी लिटिल बिट केयरफुली बी हैंडल्ड. तो थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि इसका कोई स्टेट चेंज नहीं होगा. कॉपर तो कॉपर है, 5 ग्राम पानी के बराबर है इन टर्म्स ऑफ हीट, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ मटेरियल, कि पता चलो उसमें भी आइस का वो लैटेंट हीट एंड वो सब तो नहीं लगेगा. तो बस उतना ही केयरफुल रहना पड़ता है, और कोई बात. चलो नेक्स्ट वीकली कैलकुलेट. तो ये हो गया तुम्हारा 80 into half into 60.
तो दैट इज 2400। इसका हो गया 20 इंटू 20 इंटू 1 यानी 400, और इसका हो गया 5 इंटू 300 एंड दैट इज 1500। ठीक है, देख लो अच्छे से। तो यानी देखो फाइनली क्या हो रहा है कि 400 देके ये यहाँ पे आ जाएगा और ये भी 1500 देके यहाँ पे आ जाएगा, यानी 1900 का तो मामला खत्म हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या होगा ना, इसके बाद सिर्फ 20 ग्राम वाला फ्रीज करेगा, ये 5 ग्राम वाला फ्रीज नहीं करेगा, 5 ग्राम वाला तो वहीं पे रहेगा क्योंकि ये कॉपर है। तो फ्रीजिंग से 20 ग्राम वाले का होगा। कितने का होगा? देखो 1500 और 400 तो यानी 1900 तो यहाँ पे कंज्यूम हो चुका है। ठीक है ना, 1900 जो इस केस में कंज्यूम हो चुका है। तो अब जो स्पेयर अमाउंट बचा है इसको भी 0 पे लाना है, तो यानी 500 का स्पेयर है। देखो 1900 इधर से 400 1500 मिला के 1900 और इसके पास 500 एक्स्ट्रा है, मतलब कैपेसिटी है टू विथड्रॉ रादर एक्सट्रैक्ट हीट या एब्जॉर्ब हीट। तो उस 500 के कॉरेस्पॉन्डिंग थोड़े से वाटर फ्रीज हो जाएगा, तो 50/8 तो यानी 25/4 तो यानी 6.25 ग्राम। यानी क्या हो गया ना, 6 क्या हो गया ना, फ्रीज करेगा, तो यानी फ्रीज हो गया 80 ग्राम और 6 पॉइंट, यानी फाइनल टेम्परेचर हो गया, फाइनल टेम्परेचर हो गया 0 डिग्री सेल्सियस, आइस हो गया 86.25, ठीक है, वाटर हो गया 20 माइनस 6.25 यानी 13.75, और कॉपर हो गया 5 ग्राम। ये हो गया फाइनल टेम्परेचर सर कंप्लीट। कॉपर का और भी कम हो सकता है डंबल? नहीं, अभी तो नहीं होगा, बट अगर मान लो कंप्लीट फ्रीजिंग होता और फिर और नीचे टेम्परेचर जाता तो फिर कॉपर को भी उस टेम्परेचर तक ले जाना पड़ता, बट इस केस में जरूरत नहीं पड़ा, है ना। अगर ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया तो ये जो तुमने सवाल पूछा ना, तो मैं एक फटाफट क्वेश्चन उस पर भी दे दूंगा, तो उससे थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। इसमें थोड़ा डेटा बायस था इसलिए, ठीक है ना। आई होप दिस अंडरस्टूड। अभी किसी को कुछ पूछना है इसमें से, देख लो। चलो अब मैं एक काम करता हूं, मैं जो है ना यहाँ पे एक तो 300 को कर देता हूँ 200 डिग्री सेल्सियस, दैट्स नंबर 1। नंबर 2 इज दैट 20 ग्राम को कर देता हूँ 10 ग्राम, ठीक है। I think that will be sufficient for us to analyze. 32 for 1000, 200, हाँ ठीक। अब now you solve this question again. ये 20 डिग्री सेल्सियस, ये 200 हो गया। अब सारे कैलकुलेशन बदल जाएंगे ऑब्वियसली, है ना। ये चेंज नहीं होगा क्योंकि ये तो उतना ही है, मैंने जानबूझ के इतना ही रखा। इसके फाइनल टेम्परेचर एंड कंपोजिशन बताओ जरा, जल्दी करो। इसके फाइनल टेम्परेचर एंड कंपोजिशन बताओ। फिर क्या चेंज है? चेंज है कि ये 20 ग्राम आइस से मैंने 10 ग्राम कर दिया और कॉपर का टेम्परेचर 300 से 200 कर दिया। ये देखो 200 20 डिग्री सेल्सियस बट ओनली 10 ग्राम वाटर है एट 20 डिग्री सेल्सियस, और आइस उतना ही रखा है 80 60 माइनस 60 में, इसलिए आइस का कैलकुलेशन चेंज नहीं होगा, बाकी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा, तो इसलिए पूरा मिटा देता हूँ। जल्दी करो। So has asked specific heat of capacitor, बेटे जरूरत ही नहीं ना स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटर ऑफ कॉपर, क्यों? क्योंकि कॉपर को हमने पहले ही बोल दिया 5 ग्राम वाटर इक्विवेलेंट है इसका। इस कॉपर का 5 ग्राम जो है दैट इज द वाटर इक्विवेलेंट, यानी इसको तुम पानी के बराबर लेके चलोगे स्पेसिफिक कैपेसिटी 1, ठीक है ना। इसलिए इसके अब जरूरत नहीं जानने का, मतलब कॉपर कुछ और वजन का होगा, उसके स्पेसिफिक वगैरह चीजें इंक्लूड करके, वो सारा कैलकुलेशन करके this copper is equivalent to 5 ग्राम of water, तो ऑलरेडी लिख दिया मैंने, ठीक है। चलो मैं कैलकुलेशन शुरू करता हूं। तो 5 और 200 तो 0 डिग्री आने में क्या होगा 1000, और 10 और 20 तो यानी 200, है ना, तो 200 हो गया, तो हो गया 200, ठीक है। ये 2400 और ये 1200 है, यानी अभी 1200 का और स्पेयर कैपेसिटी है इसके पास। अच्छा, अब यहाँ पे 10 ग्राम आइस तो 10 ग्राम पानी तो में फ्रीज होगा, लेकिन याद रखना ये जो 5 ग्राम वाटर इक्विवेलेंट है इसका कुछ नहीं होने वाला, तो ध्यान रखना इस चीज। और मैं चेक करना चाहता हूं कि क्या पूरा में फ्रीज हो सकता है, तो 10 ग्राम को फ्रीज करने के लिए कितना चाहिए, 800 चाहिए,
800 एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो टोटल कितना एक्सट्रैक्ट करना पड़ रहा है? 1200, तो 1200 एंड 800 दैट इज 2000। तो 2000 अगर एक्सट्रैक्ट करने लायक सिचुएशन है तब तो ये पानी पूरा फ्रीज हो जाएगा। यहाँ तो 2000 से ज्यादा ही है, 2400 है, यानी इस बार ये डायग्राम बदलेगा, इस बार ये डायग्राम बदलेगा, इस बार डायग्राम कुछ और होगा। ठीक है, मैं एक बार फ्रेश डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, ये हो गया -60 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया 2400, जस्ट कैलकुलेशन हमें, और ये 0 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया 20 डिग्री सेल्सियस, ये 800 सॉरी 200, हाँ 200, और ये 200 डिग्री सेल्सियस, तो ये 1000। यानी एज ऑफ तो मुझे पता चल गया कि ये तो यहाँ पे आ जाएगा, ये भी यहाँ पे आ जाएगा। नॉट ओनली दैट, ये फ्रीज भी हो जाएगा पूरा, और फाइनली और नीचे आएगा इधर, ये होगा ऐसे कुछ। बाकी अब मैं और दिखाना नहीं चाह रहा हूं, इसमें क्या क्या चीजें चेंज करके तुमको आंसर करना है, दैट्स नॉट टू यू। Okay, the question that has been given is that final composition होगा 90 ग्राम ice and 5 ग्राम copper. That's fine, Sania. But Sania, final temperature भी बताओ, है ना? तो चलो anyway, पूरा फ्रीज हो गया ना। अब ध्यान रखना, कॉपर का सीधा यहाँ से यहाँ तक लाना है। कॉपर का अलग ही कैलकुलेशन होगा इस बार। क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर माइनस हो गया ना, कॉपर का अभी भी वाटर इक्विवेलेंट के जैसे बिहेवियर होगा। कॉपर का कोई स्टेट चेंज थोड़ी है। तो देयरफॉर अब हम कैसे करेंगे ना, ये अगर थीटा हुआ तब हम लिखेंगे मास into specific capacity into theta minus -60, that is heat gain, और बाकी सब हीट लूज कर रहा है। तो हीट लूज कितना कर रहा है ना, 200 प्लस 1000, नहीं अब 1000 नहीं होगा ना, अब 1000 थोड़ी होगा, ये 200 हो गया और ये 800 हो गया, प्लस 800 प्लस कॉपर का क्या होगा देखो, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। कॉपर का क्या ना, हीट लॉस में होता है इनिशियल माइनस फाइनल, यानी इनिशियल माइनस फाइनल मतलब हो जाएगा 5 इसका वाटर इक्विवेलेंट इनटू 1 इनटू इनिशियल, दैट इज 200 माइनस थीटा। ये होगा इसका करेक्ट आंसर। कुछ लोगों ने दिया है -480 बाई 13 डिग्री सेल्सियस, तो मैं देख लेता हूँ। ये 2 से कर दो तो 40, तो यानी 40 थीटा प्लस 2400 इज इक्वल टू 1000 प्लस 1000, है ना, ये भी तो 1000 है, तो 2000 माइनस 5 थीटा, तो इधर आ जाएगा, यानी 45 थीटा इज इक्वल टू -400, हाँ, तो यानी थीटा इज इक्वल टू -400 बाई 40, तो यानी माइनस ऑफ 80 बाई 9, ठीक है ना, तो माइनस ऑफ 80 बाई 9 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 5 से डिवाइड कर दिया जाएगा, यानी फाइनल टेम्परेचर तो आ गया, फाइनल टेम्परेचर आ गया -80 बाई 9 डिग्री सेल्सियस, और कॉम्पोजिशन में क्या आ रहा है ना, कॉम्पोजिशन में देखो पूरा आइस हो चुका है, ये 80 ग्राम और ये 10 ग्राम पूरा आइस है, यानी 90 ग्राम आइस एंड 5 ग्राम वाटर इक्विवेलेंट, ठीक है ना, ऑफ कॉपर। सर इसमें वाटर 0 से थीटा पे जा रहे, वो नहीं लिया क्या? वाटर का लिया है ना, 0 to थीटा लिया नहीं है क्या? अच्छा हाँ, ये तो छूट ही गया, ये भी तो रह गया। दोनों को 15 ले सकते हैं ना? आएगा आएगा बिल्कुल, वो मैंने लिया नहीं, तो 10 इंटू हाफ इंटू, तो यानी कैलकुलेशन बदलेगा, ये पूरा चेंज हो जाएगा, हाफ इंटू 0 माइनस थीटा, ये भी एक आएगा, बिल्कुल आएगा, वो गलती हुआ, तो 5 थीटा ये भी आएगा, है ना, -5 थीटा और -5 करें तो अच्छा -10 थीटा हो गया, तो ये आ गया माइनस, फिर ये आ जाएगा 50 थीटा, ये गलती हुआ है, तो अच्छा एग्जांपल आ गया -50 थीटा प्लस 50 थीटा, है ना, तो ये आ गया 8 डिग्री सेल्सियस एग्जैक्टली, है ना, ये कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, ठीक कर लो, तो थीटा -400 बाई 50 एंड दैट इज -8 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल सही, हमने लिया नहीं था वो।
गलत हुआ। सर 0 डिग्री के बाद तो दोनों को मिला भी सकते हैं ना 15 का। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, नहीं मिल पाएगा। पता है क्यों? क्योंकि 0 के बाद इसका हो जाता है हाफ। ये जो पानी का 10 ग्राम है ना, इसका स्पेसिफिक कैपेसिटी हाफ हो गया। लेकिन जो कॉपर का वाटर इक्विवेलेंट है वो तो कॉपर के तरीके से है, तो वो अभी भी 1 ही है। इसलिए देखो कॉपर का सीधा 200 से थीटा लिया और मैं देखो सीधा 1 लिया है। ये देखो कॉपर का। ओके सर। वाटर का यहाँ से यहाँ तक स्पेसिफिक कैपेसिटी 1 है। यहाँ तो चलो लेटेंट हीट हो गया और यहाँ पे हाफ है। ये वाला छूट गया था, ये गलती से देखा नहीं था, तो ये छूट गया था, ये तो ठीक कर लो। बट द थिंग इज दैट वो हाफ हो जाएगा। इसलिए कॉपर और वाटर को सीधा नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे स्टेट चेंज हो गया। अगर मान लो लास्ट में यहीं पे कहीं पे होता, तब तो कॉपर और उसको मिला दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वाटर का वाटर जैसे ही रह रहा है। लेकिन कॉपर का क्या है ना, वाटर इक्विवेलेंट का वाटर का जैसे ही रहेगा यहाँ से यहाँ पूरा, तो इसलिए थोड़ा सा अलग हो गया। ठीक है ना? चलो एक बार देख लो अच्छे से। चलो, so that was an introduction to your calorimetry, fine, and we are almost at the end of the day's proceedings. I mean, कुछ क्वेश्चंस भी आया हुआ है, दैट इज वो आपने उसका नहीं बताया जो इसको का क्वेश्चन पूछा था। देखो, आई थिंक दैट वाज एन ऑब्वियस क्वेश्चन। Millikan's oil drop experiment. Millikan's oil drop experiment is an experiment which has both electrostatics in it as well as viscosity. तो इसके बाकी थोड़ा डिटेल्स पढ़ लेना और इसके वीडियोस पूरे देखना, यूट्यूब में अवेलेबल। आई थिंक यू कैन मेक अ रिसर्च। बस मैं इतना ही बता रहा हूँ। एक आध और देख लेता हूँ अगर कुछ, ठीक है ना, कमेंट्स है तो। Okay. One more is that my best moment was when I got in class 10th result. I scored more than I had expected or I had thought. Chalo, good. So that was a good moment to remember, I'm sure. Okay, an honest admission. But as usual, I'm not going to read out the name. And that is the best moment or other moments was being able to take classes while remaining inside a blanket. That's why I said it's an honest admission. And as usual, I will stick by my rules and I will not disclose the name. Okay. Well, this one also I don't know whether I should disclose or not, but then I don't know. Let me not disclose only. And that is, this was the first year in which पूरे 6-7 महीने में घर से बाहर नहीं निकला और पूरे पिछले 8 महीने में मैं सिर्फ 4 बार ही निकला घर से बाहर। Now the question is that वो 4 बार किस लिए निकले थे? That's a question mark. ठीक है? Now there is another one and that is एक और achievement याद आ गया, that is मार्च में स्कूल और फिटजी स्टार्ट होने से पहले मैंने binge watching का personal best set किया था। I watched 7 seasons of a series in 8 days. I don't know how much is each series. I mean, अच्छा दिया हुआ है। Each season has approximately 19 episodes and each episode was around 20 minutes. So now you can multiply it with that many number of minutes and find out. So truly it was a binge watching, no doubt. Well, okay. Another request and that is मेरा नाम जरूर मत लेना and that is क्या अब हम लोग इरोडॉप के क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं? बेटे बिल्कुल इरोडॉप के क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो। इनफैक्ट वर्क पॉइंट एनर्जी रोटेशन तक का बिल्कुल, ग्रेविटेशन तक का बिल्कुल कर सकते हो। बस एक कैच है, उसमें कई क्वेश्चंस में देखना मोशन में यू नो क्या बोलते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स के क्वेश्चन, बस उनको छोड़ देना। ठीक है ना, उनको छोड़ देना। बाकी लॉज ऑफ मोशन इन 1D 2D, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी, रोटेशन, ग्रेविटेशन सब कर सकते। बस पोलर कोऑर्डिनेट्स के जो क्वेश्चंस है वो छोड़ देना। दैट्स द ओनली थिंग। अदरवाइज यू कैन क्वेश्चंस हां मार्क करा दोगे क्वेश्चंस। एक्चुअली ना अब और मार्क करने की जरूरत नहीं है। शुरू में तो था कि लिमिटेड कर लो, कहीं अटक जाओगे। अब कोई जरूरत नहीं है। अब तुमको इजीली तुम पहचान लोगे कि कौन से पोलर कोऑर्डिनेट वाले क्वेश्चंस हैं, उनको स्किप कर दो, बाकी सारे कर लो। सो आई एम नॉट स्टिकिंग टू एनी पर्टिकुलर few questions. I am saying do the entire book except for questions on polar coordinates. That's it. Okay. Just one or two more before we, you know, one more was, and that is, chalo, this was more in which I was involved. So like watching then my name, I mean, score like Ronaldo and shoes and sir both were in air. Actually, na.
आई मीन अदर्स मे नॉट बी नोइंग, एक दिन हम लोग गेम्स में चले गए थे फुटबॉल खेलने के लिए, तो मैं थोड़ा इस तरफ था और गोल पीछे था, तो मैं ऐसे मुड़ के हिट किया। तो ऑब्वियसली जब मुड़ के हिट करो तो क्या होता है ना, बैलेंस तो होता नहीं है, तो लाइक आई फेल डाउन, माय शूज वाज इन द एयर, बट द बेस्ट पार्ट वाज दैट देयर वाज अ गोल स्कोर्ड। और उस दिन हमारी टीम जो है आई थिंक 2-3 से हार गए थे शायद, और लास्ट मोमेंट में मेरा एक गोल हो नहीं पाया था। चलो खैर कोई बात नहीं। अच्छा नाउ अभी थोड़ी देर पहले हुआ था ना कि सिर्फ 4 बार निकले थे, तो जस्ट गिवन मी लिस्ट की कौन से टाइम निकले थे। 2 बार स्कूल के लिए निकले थे, 1 बार बुक लेने के लिए निकले थे, और 1 बार का याद नहीं है। चलो 2 अचीवमेंट्स अभी ठीक है ना। एंड अभी तक का बेस्ट मोमेंट होगा सीबीएसई रिजल्ट्स। मेरे मैथ्स में 100% आए थे, एंड इट वाज स्पेशल बिकॉज़ माय डैड एंड ग्रैंडफादर हैड आल्सो स्कोर्ड 100% in math when they were in school. Okay, that's great. So you are carrying on some kind of a family tradition. Chalo, not a bad thing. ठीक है ना? Let's hope that many other family traditions are carried just like this. And न्यू ईयर में एक कॉमन वो रहता है कि क्या कुछ हम लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशंस करें या नहीं करें। These are just besides the point. Resolutions कोई फॉलो तो करेंगे नहीं, बट हाँ एक चीज जरूर मैं कहूंगा इज दैट स्टडीज के अलावा 1-2 स्किल्स हमें जरूर एक्वायर करना चाहिए, और ये सबके लिए वैलिड है। स्टडीज के अलावा 1-2 स्किल्स, 1 या 2 स्किल्स कम से कम अच्छे से एक्वायर करना चाहिए, और ये सबके लिए वैलिड है। एंड वी शुड ऑल स्ट्राइव टू एटलीस्ट make some effort in those 1 or 2 skills at least. Now that's the least. If you are interested in more, it's always more the better. Right? ठीक है? चलो, anyway, let's end the discussion here. Have a very nice and grand new year ahead. And most importantly, I hope that the holidays that are going to come for these 10 days, I mean, you will have a nice time enjoying sunny weather outside your homes or balconies, or maybe even the rooftops or wherever you can possibly enjoy, and instead of classes in the blanket, as I just came to know. But that was nothing like a secret. I mean, we all know that, but good that we have disclosed the secret. ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अब अगले साल। तब तक जो है अपना वही वीकली रिजॉल्व को खत्म मत करना। Let that go on as usual in the same pace as it was going till date. ठीक है, और इरोडॉप के बारे में आज डिस्कस हो ही गया कि now you can start and solve इरोडॉप same chapters that we've done till now. Except for those which are having polar coordinates in their question. ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। Have a great time and happy new year. Happy New Year, sir. Thank you and have a great year. So every day मैं बोलता हूँ have a great day, अब मैं बोलूँगा have a great year ahead. There's a change. चलो, okay, thank you, have a good day and also good year. सर हाँ जी, सर केवीपीवाई की क्लासेस होंगी क्या? अब तो 1 महीना अब एक्चुअली चक्कर क्या ना, पहले हम लोगों ने सोचा था कि केवीपीआई के क्लासेस हम लोग बुला के कराएंगे, लेकिन अब वो सब तो सब हो ही नहीं पा रहा, अब समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। विंटर But ब्रेक then let's see what is happening in this. हाँ, विंटर ब्रेक में रख लो, हमें 2 साल से वैसे ही नहीं मिला कोई विंटर ब्रेक। नहीं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि लेट्स सी, आई मीन हो सकता है कि अगर आज के नोटिफिकेशन आता है कि अब हम स्कूल को खोल सकते हैं और काइंड ऑफ, तो मे बी वी कैन हैव फ्यू क्लासेस एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। देखते हैं, इट्स ऑल प्रोविजनल नाउ, आई कांट रियली कमिट राइट नाउ। ठीक है ना, चलो, लेकिन ये कि इन द मीनवाइल मैं तो कहता हूँ कि अगर एचसी वर्मा से भी अगर तैयारी कर लो ना, वो जो 12th के रेलेवेंट चैप्टर्स, ज्यादा नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स, ये 4 चैप्टर्स एचसीवी से भी अगर कर लो, आई थिंक एचसीवी इज रिटन इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, तो देखना थ्योरी भी समझ में आ जाएगा। उसके सॉल्व एग्जांपल्स तक भी अगर सारे अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओगे तो केवीपीआई के एग्जाम में मोस्टली यू विल गेट कॉमन क्वेश्चंस, डोंट वरी। ठीक है ना, चलो, विद दैट वी एंड द डे, हैव अ ग्रेट ईयर।